بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 94 اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ ملک رؤف زبیر۔ آج کا پروگرام ہے کاروان مغل آل پاکستان رجسٹرڈ۔ تو میرے ساتھ اس کے کاروان مغل کے چیئرمین ہیں جناب مرزا محمد حنیف صاحب، اور اس کے صدر ہیں مرزا عمران بابر صاحب، اور اعجاز احمد جنجوعہ صاحب ہیں۔ ان سے میں پوچھوں گا کہ آپ تجزیہ کاری ہوں گے کہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے؟ جی میں عوام کو یا کم از کم مغل برادری کو ڈیفینڈ کروں گا۔ اچھا، مغل برادری کا کردار بھی آپ نے اس کا جو ہے وہ ہیڈنگ لکھی تھی۔ سب سے پہلے میں جو ہے وہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ 94 اسٹوڈیو تشریف لائے۔ تو میں شروع کروں گا مرزا محمد حنیف صاحب سے۔ مرزا محمد حنیف صاحب تھوڑا سا اس کا تعارف تو کروائیں، کاروان مغل آل پاکستان رجسٹرڈ یہ کیا چیز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک رؤف زبیر صاحب، اس موضوع پر ہمارا آپ کے یہاں یہ پروگرام ہو چکا ہے، کاروان مغل کے تعارف کے سلسلے میں۔ تو جیسا کہ یہ ایک رفائی تنظیم ہے اور مغلوں کی ہے، تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم مغل برادری کی فلاح کے لیے جو کچھ بھی ہو سکا وہ کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا، آپ کیا کہیں گے جی اپنی، آپ چونکہ صدر ہیں اس کے مرزا عمران بابر صاحب؟ السلام علیکم۔ ہمارا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مغل برادری کو متحد کریں اور ان کے فلاح و بہبود کا کام جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ باقاعدہ کر سکیں، تاکہ کوئی بندہ بھی یہ نہ سمجھے کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں یا کسی حوالے سے کسی کو پریشانی نہ ہو۔ مغل برادری متحد ہو، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے اور ان کے سارے معاملات جو ہے نا وہ اکٹھے حل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اس کا وجود کب آیا، کب یہ ممبر ہیں اور ہمارے عہدیداران ہیں، ٹوٹل کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس؟ 700 بس جنہوں نے فارم کے لکھی ہوئی ہیں۔ ویسے جو ہمارے ساتھ متاثر ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، وہ آپ اندازہ کر لیں، اگر ایک گھر سے ایک بندے نے فارم سے لکھی ہے تو اس گھر کے 6-7 بندے ساتھ ہیں۔ ایجنڈا کیا ہے؟ لکھا ہوا نہیں ہے آپ کا جو وہ منشور جو ہوتا ہے؟ ہمارا منشور صرف مختصر ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ مغل برادری کو ان کا جائز مقام دلوانا۔ اعجاز احمد جنجوعہ صاحب، ایک جو فلاحی رفائی تنظیم ہوتی ہے اس کا مقصد کیا اپنے لوگوں کو جائز مقام دلوانا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، آج کا یہ پروگرام میں سمجھتا ہوں معاشرتی طور پہ بہت اہم پروگرام ہے، کیونکہ مغل برادری وہ برادری ہے جس نے تقریباً 750 سال بر صغیر پہ حکمرانی کی ہے۔ میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا ایک جو رفائی فلاحی تنظیم ہوتی ہے اس کا مقصد اپنے لوگوں کو کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلب ہے معاشرے میں اپنا جائز مقام دلوانا ہوتا ہے؟ یہ میرا کوسچن ہے۔ میں عرض کرتا ہوں اس کا جواب تو آپ ان سے طلب کریں نا جو تنظیم کا حصہ ہے۔ نہیں، آپ تجزیہ کار ہیں، چونکہ پروگرام میں ساتھ آپ تجزیہ کار ہیں، آپ ان کو ڈیفینڈ نہ کریں، آپ اپنی ہسٹری نہ بیان کرتے جو کہتے ہیں کہ ہم حکمران رہے ہیں، وہ وقت دور گزر گیا ہے، آپ کی حال کی بات کر رہے ہیں۔ اب حال کی بات جو ہے، جو فلاحی تنظیمیں ہوتی ہیں ان سب کے اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ منشور ہوتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ کاروان مغل کا ایجنڈا سیاسی ہے یا صرف اور صرف سماجی ہے۔ ایک ہوتی ہیں غیر سیاسی تنظیمیں، ایک ہوتی ہیں سیاسی تنظیمیں۔ اب کاروان مغل کے حوالے سے میں اپریشیٹ کروں گا کہ کم از کم چلیں، انہوں نے مغل برادری کو متحد کرنے کے لیے خود کو پیش بھی کیا اور الحمدللہ کردار بھی ادا کر رہے ہیں اور بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ یہ جو ان کا ایجنڈا ہے، جب یہ بتائیں گے پھر ہی میں اس پہ تبصرہ کر سکتا ہوں نا جی۔ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مغل برادری کے اتحاد کے لیے میں نے صرف آپ سے یہ سوال پوچھا ہے، دوبارہ میں جواب دیتا ہوں۔ نہیں، آپ ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ ہمارے قبیلے کے، ہماری برادری کے کسی بھی بندے کو کہیں بھی کسی بھی وقت ہماری ضرورت ہو تو ہم اس کی حق کے لیے پہنچیں۔ ٹھیک ہے، لیکن سر جی لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ اپنے بندوں کو بیمار کریں ہم پھر ان کی دوائی لے کے جائیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ان کے وسائل اس طریقے سے بنائے جائیں کہ وہ غربت اور افلاس اور اپنے جو ان کے معیشت کا سلسلہ ہے اس میں وہ کمزور ہو کے ان خرابیوں کی طرف جائیں؟ اور دوسری بات یہ ہے جو جنجوعہ صاحب فرما رہے ہیں
कि हमारा एजेंडा सियासी है या हमारा फलाई है या रफाई है, तो क्या आप ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि इक़्तिदार और इख्तियार के बगैर किसी की खुलकर मदद की जा सकती है? जब जिस तरह 100 साल अंग्रेज और 72 साल देसी अंग्रेज मुगलों को दबा रहे हैं, अगर इसी तरह ये दबाते रहेंगे और हम चुप करके बैठे रहेंगे तो हम किस तरह फिर फलाह करेंगे? उसके लिए इख्तियारात के हसूल के लिए हमारी जद्दोजहद जो है वो पहले दिन से साथ जारी है, और हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि मंडी बहादुर से हमने शुरू किया है ये प्रोग्राम, और मंडी बहादुर में इंशाअल्लाह हम इक़्तिदार के मानों में जाएंगे। आपकी यानी कि ये जमात जो है सियासी जमात होगी, नहीं, इलेक्शन लड़ेगी? नहीं सर, इक़्तिदार के मानों में फिर कैसे पहुंचेंगे? इक़्तिदार के मानों में इस तरह जाएंगे कि जो हमारे मुंतखब करदा नुमाइंदे होंगे, चाहे वो किसी भी कौम से, हम इतने 50% इतनी ज्यादा अक्सरियत है, तो हम उनके साथ कोई अटैचमेंट, कोई रिटर्न प्रोग्राम कुछ इस तरह करेंगे कि हमें हर चीज में हिस्सा मिलना चाहिए। जरूरी तो नहीं कि मैं MLA बनूं, एक MLA जो है जिसकी हमें उम्मीद है कि यही बन जाता है, हम उसके साथ कोऑपरेट करें और उसके साथ फैसिलिटीज हमारी अपनी जो है, हमारे जो काम है उनका हमारे साथ उसके साथ लेन देन बातचीत हो जाती है। यानी कि आप देखेंगे कि जो आंदा इलेक्शन में जो जीतने वाला होगा उम्मीदवार, उसके साथ मिल के काम करेंगे, उसको वोट देंगे और अपने जो मामलात हैं उनको हल करवाएंगे। नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। अगर हमारी अपनी बरादरी से कोई बंदा हमें नजर आ गया कि इस काबिल है, तो कारवाने मुगल सबसे पहले उसकी हेल्प करने के लिए, उसके साथ जद्दोजहद करने के लिए 100% राजी है, बगैर किसी शर्त के। और किसी जगह पर अगर हमारी बरादरी के मेंबरान या नुमाइंदगान जगह पूरी नहीं कर सकते, तो फिर हम देखेंगे कि कौन सा बंदा जो हमारे मतलब क्या है और उसके साथ हम ताउन करेंगे। जी नाना साहब, अभी यहाँ पर भी आपका तजिया दरकार है, क्योंकि आप मैं अर्ज करता हूँ, ये बहुत अहम मतलब है, इस जगह पे तजिया बनता है। ये तो फिर सियासी जमात ना होगी। जी हो गई सर, ये मैं अर्ज करने लगा ना जी। एक तो ये है कि जो उन्होंने बात की है कि जो मुआशरे में मरहूम तबकात हैं मुगल बरादरी के, ये उनकी सिर्फ बात करते हैं, जबकि इसमें एक बरादरी का सामने आना तो मैं समझता हूँ तअस्सुब की अलामत होता है। इस नजरिए को ख़त्म करने के लिए मैं समझता हूँ कि तमाम के तमाम वो महरूम लोग जिनसे हकूक छीने गए हैं, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, या ये जो मौजूदा वडेराना निज़ाम है या जगीरदाराना निज़ाम है, सरमायादाराना निज़ाम है, ये जो उनके साथ ज़्यादती कर रहा है, ये उसमें सिर्फ मुगल ही तो नहीं आते, बल्कि शायद मुगल तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ मंडी बहादुर नहीं, पूरे पाकिस्तान में काफ़ी लोग उनमें वो शामिल हैं जो लोगों से हकूक छीन रहे हैं। तो मैं तो ये समझूंगा सर, दो बातें यहाँ अर्ज करना जरूरी समझता हूँ। काइंडली ये तरह मैं करता हूँ, प्रोग्राम है, लाइव चल रहा है, गुजारिश है जब आपको मौका मिले आप अपनी बात बिल्कुल आवाम तक पहुँचाएं। मैं आप जो भी बातें करते हैं या गलत करें या सही करें, मैं उनको इंटरप्ट नहीं करता। तो काइंडली आवाम आज देख रही है, फैसला करना है आवाम ने। क्या कर रहे हैं जब आप हमारी बात पे इंटरप्ट ही नहीं कर रहे, बात उनकी भी सुन ले, वो क्या कहना चाहते हैं। ये क्या हुआ जब हमारी बात का इंटरप्ट ही नहीं कर रहे? बात आप करें जो आप करना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि बेशक पाकिस्तान पूरे में मुगल खुशहाल हो रहे हैं, लेकिन इनका जो मुकाम है उसकी तरफ इनकी अभी तवज्जो ही नहीं है। और दूसरी ये बात है कि सारे महरूम तबकों की महरूमियत सिर्फ मुगल इक़्तिदार में आके दूर करेंगे, और इन्होंने ही दूर की है। ये तो सर आप डिसीजन कर देना आपने, ये तो आपने डिसीजन करता है, ये आपका राइट है। मकाम की तरफ भी आएंगे, पूछेंगे आपसे कि मकाम क्या है, लेकिन उससे पहले मैं जो है मिर्जा इमरान बाबा साहब से जानना चाहूँगा कि मंडी बहादुर जिले में मुगलों की तादाद कितनी है? हमारी तकरीबन ऐसे समझे कि 70% मुगल बरादरी है हमारे जिले में, मंडी बहादुर में। तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम बाकायदा तौर पे इन्हें ये नहीं सपोर्ट कर सकते कि हम लाजमी जो है वो खुद सियासत में आए। हमारा मकसद आल बरादरी को इकट्ठा करना और अवाम नास के हकूक़ का ख्याल रखना भी है। सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ मुगल बरादरी को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी कोशिश ये है
کہ سب سے پہلے ہم اپنی برادری یا اپنے قبیلے کو متحد کریں, انہیں اکٹھا لے کے چلیں. باقی رہے گی بات سیاست کی. سیاست میں ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم کسی کا پلو پکڑ کے ہم نے چلنا ہے, ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اگر ان میں کوئی دلچسپی رکھتا ہے سیاست میں, ہم ان کے ساتھ ہوں گے, کوشش کریں گے کہ انہیں آگے لے کے آئیں اور انہیں بیک پہ سپورٹ کریں. صرف سیاسی جماعت کے طور پہ ہم آگے نہیں آ رہے. ہمارا مقصد بنیادی طور پہ صرف یہ ہے کہ جو لوگ ٹیلنٹڈ ہیں, جن کے پاس اختیارات ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی کوالٹی ہے, وہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں, تو انہیں ہم انشاءاللہ بیک پہ پوری سپورٹ کریں گے, ساتھ دیں گے, تاکہ ہم اپنا جو ہے حقوق آسان طریقے سے حاصل کر سکیں. اچھا ناظر صاحب, انہوں نے کہا کہ 70% ہے بڑی بہدین میں اقتدار مغلوں, 20 ایک اعتراض ہے اس میں, بعد میں اعتراض ہے. اچھا اب بتائیں ایک بات ان سے پوچھیں, کتنے اقتدار وہ کہہ رہے ہیں 25 ہے. یہ ہمارے ساتھ ایک الگ ہے, وہاں کوٹ ہیں بڑے, وہ کرش کیا گیا نا, تو جن کو ہم سیری کہتے ہیں, مسلی کہتے ہیں, یہ لوگ بے روزگار بن کے ان کو مطلب پہ قابو کیا گیا, جیلوں سے پکڑ کے ان کو غلام بنایا گیا, تو یہ میرے نزدیک بھی مغل ہیں. لیکن بات ہے مغل کروانے کی. ناظر صاحب, آپ چونکہ تینوں افراد جو ہے مغل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, میں جو ہے مجھے تو یہ نہیں کرتا, آپ کی وجہ سے تھوڑا سا میں بھی چونکہ طالب علم ہوں صحافت کا, جاننا چاہوں گا, اور اپنی جو عوام ہے, ناظرین ہیں, دیکھ رہے ہیں, 100% مغل ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اوریجنل مغل تھے وہ لوہار تھے, اس میں کوئی شبہ نہیں, تاریخ بتاتی ہے وہ منگول تھے, اور وہ تلواریں بنانے کا, چھرے بنانے کا کام کرتے تھے. سالانہ ایک میلہ لگایا جاتا تھا ہندوستان کی حکومت میں, جہاں پہ یہ مقابلہ ہوتا تھا کہ کون سب سے اچھا اسلحہ تیار کرتا ہے. لوہے کی بھٹیاں لگا کے وہاں پہ خنجر, بھالے, تلواریں, خنجر تیار کیے جاتے تھے. جس کا سب سے خوبصورت ہوتا تھا اس کو مغل اس کو انعام دیتے تھے. آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ بادشاہوں والے یہی مغل ہیں. بہادر شاہ ظفر کی اولاد تو کلکتہ میں جمہوریوں میں چائے بنا کے بیچتے, تو کیا ان کو دیکھ کے آپ یہ یا کوئی بندہ یہ مان لے گا کہ یہ تاجدار ہندوستان ہے؟ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. وقت کی اور حالات کی جو ہے نا چکی بڑے بڑوں کو پیس دیتی ہے. ابھی حال ہی کی بات ہے, صدام حسین کی بیٹیاں جو ہیں, جن کے لیے کئی ملکوں سے جوتے, کئی ملکوں سے کپڑے آتے تھے, اب اپنی ٹوائلٹیں بھی خود صاف کر رہے ہیں. میرا یہ مقصد نہیں تھا, میرا صرف مقصد تھا بات کو کلیریفائی کرنا, یہ جاننا کہ آپ وہی مغل ہیں. آپ نے کہا کہ جو مقام ہے, تھوڑی سے پہلے بات آپ کر رہے تھے, جو مقام ہے وہ دلائیں گے, تو مغلوں کا کیا مقام ہے, اس بارے میں تھوڑا وضاحت کریں. مغلوں کا مقام یہی ہے کہ ہندوستان پر جو ہے وہ اقتدار مغل ہے. اور اس وقت ہمارا جو انشاءاللہ بڑا پروگرام ہوگا, اس میں میڈیا کے ذریعے گورنمنٹ تک یہ آواز پہنچاؤں گا کہ ہماری تعداد کے حساب سے ہمیں سینٹ میں سیٹیں دی جائیں. اچھا دیکھیں, اس طرح تو جو ہے وہ ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا تھا, آل انڈیا, اس کے مغلوں کی سلطنت تھی, یہ ان کی بات یہ تھی ہم اقتدار کے حقدار ہیں. اگر آپ کی تعداد زیادہ ہے تو اس طرح کہنے سے تو نہیں آ جائے گی نا, آپ حکمران نہیں بن جائے گا. اگر مرزا صاحب, عمران صاحب, اگر آپ کی تعداد زیادہ ہے تو اپنے امیدوار کھڑے کر کے اسمبلیوں میں لے آئیں, تو حکمران بن جائیں. یہ ہمارا مقصد, جمہوریت میں یہی ہوتا ہے نا, ہمارا مقصد یا ہماری سوچ صرف عمرانہ واقعی کوئی نہیں. ہمارا مقصد یہی ہے کہ جمہوری طور پہ ہم تیار کر رہے ہیں لوگوں کو, کم سے کم وہ جس شعبے میں وہ اچھی طرح وہ جا سکتے ہیں وہ جائے. اگر بندہ سیاست میں اچھی طرح آگے آ سکتا ہے تو انہیں ہم سپورٹ کریں گے. سیاست میں آگے آئے, وہ ایم پی بنے, ایم این اے بنے, آگے جا کے وہ اقتدار میں جا سکتے ہیں, اقتدار میں آئے. لیکن اقتدار میں آنے کے لیے تو سیاست میں آنا ہوگا, سیاست میں آنے کے لیے الیکشن لڑنا ہوگا. 1857 میں جو حالات مغلوں کے تھے, 1860 میں جو حالات مغلوں کے تھے, اپنی جانیں بچانے کے لیے یہ نیچے سے نیچے بھی جو پروفیشن اختیار کرنے پہ راضی تھے. اور آج جو حالات ہیں, کیا ترقی نہیں ہے؟ تو اگر یہ ترقی اب سپیڈ اپ ہو گئی ہے نا, میڈیا ہے, اب ایک دوسرے کی خبریں جاتی ہیں, تو انشاءاللہ اگلے 30 سالوں میں آپ دیکھنا حالات کس طرح تبدیل ہو گئی. اچھا ناظر صاحب, آپ سے بھی دیکھیے, مجھے بار بار درکار ہوتا ہے, حکمرانی کے لیے
पहले जो है वो कौन सी सोच का होना जरूरी है? अपने जहन से पहले हमें वो गुलामी की जो जंजीरें हम निकाल के पहले सर मैं नाज़रीन से भी और आपसे भी अर्ज करना चाहता हूँ, हमारे साथ आल पाकिस्तान कारवान मुगल के चेयरमैन हैं, लेकिन एक अर्ज करूँगा कि जब भी कोई बंदा बात कर रहा होता है ना, उसकी बात को मुकम्मल सुन के उसके बाद उसके बारे में कोई राय कायम की जाती है। जबकि ये प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी चेयरमैन साहब में कि ठीक हो गया, बात को आगे बढ़ाएं। अच्छा, बात ये है कि जो आपने बात की ना हुक्मरानी की, पहले हमें ज़हनी गुलामी नहीं दूर करनी होगी। वही करने लगा हूं सर। दुनिया की तारीख में जो सबसे बेहतरीन निज़ाम हुकूमत था वो मुगलिया निज़ाम हुकूमत था। ये जो अंग्रेजों ने तारीख मसक करके हम तक पहुंचाई कि ये था मुगल, वो थे खवातीन के शदाई थे, ये करप्शन करते थे, वो 100% गलत बातें हैं। सारी हिस्ट्री गवाह है कि जितनी डेवलपमेंट हिंदुस्तान की उनके दौर में हुई नहीं हुई। और मुगल बादशाह इतने ईमानदार थे कि वो अपने हाथों से कुरान पाक लिख के बेचते थे, टोपियां बना के अपनी रोजी कमाते थे। जो हिंदुस्तान का हुक्मरान, आप एक देखे ना, अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा कौम थी बनी इसराइल, उससे भी तो आपने इक़्तिदार छीने हैं ना। गलतियां होती हैं इंसान में, इंसान ही थे ना, फरिश्ते तो नहीं थे। लेकिन 750 साल तक अल्लाह ताला ने उनको हुक्मरानी क्यों दी थी? उनका टैलेंट था। लेकिन आज 5 साल का टर्नओवर होता है, ये नवाज शरीफ 30 साल हुकूमत किया तो कितना उसके खिलाफ मतलब शोर गुल है। तो 750 साल में नाम लिया जा सकता है, कई नस्लें आ जाती हैं। यहाँ पे नवाज शरीफ का आपने नाम लिया, तो वो अगर नवाज शरीफ इक़्तिदार में आता है तो वो आपकी मुगलों की हुकूमत ना हुई पाकिस्तान में? वो किस तरह? मुगल फैमिली से ताल्लुक नहीं रखते, वो भी लोहे का काम नहीं करते, फैक्ट्री उनकी जो अब सारी रिश्तेदारी, सारा लेन देन जो है वो खाजे और भट्ट और मीर जो है। नहीं सर, मैं चेयरमैन साहब यहाँ पे इख्तिलाफ करूंगा। नाजरीन देखिए, मेरा अपना खानदानी है कोई है लोहार है, नहीं कोई बंदा उठ के काम लोहारों वाला शुरू कर सर, नहीं तो उसी वक्त मुगल हो जाएगा। अब एक देखे ना, जो भी बंदा अपने आप को मुगल लिख ले मिर्जा साहब, वो भी तो मुगल नहीं हो जाएगा ना। गुजारिश है किरदार इंसान का। मैं तो देखिए, अब मेरा उस पार्टी से भी ताल्लुक नहीं, लेकिन उसको मुगल शहजादा दुनिया ने कहा है और उनके मुखालफिन ने उनको मुगल शहजादे का खिताब भी दिया नवाज शरीफ को। और मैं ये समझता हूँ कि मुगल बरादरी को ये खुद पे फख्र करना चाहिए कि वो हमारा पेशे के लिहाज से लोहार है और उसको हुक्मरानी अल्लाह ताला ने दी और पाकिस्तान में कामयाब हुक्मरानी दी। ये एक चले मौजू अलग है, इसको छोड़े। हम अब किरदार पे बात कर रहे थे। कारवान मुगल एक तंजीम है। मैं तो इससे पहले जो वो तंजीम मुगलिया वालों का प्रोग्राम था उसमें भी ये कहा था कि अगर आप मुगल हैं, मुझे थोड़ा सा एक बार तंजीम के बारे में जान लेने दीजिए और अवाम भी जान ले। मुझे थोड़े से जो है क्वेश्चन कर लेने दें, थोड़ा सा इसको मतलब खोल के देख लें कि ये जो है वो बात क्या होती है, पोर्टलिंग उसमें है क्या, ठीक है। अच्छा, तो क्या ये एक प्रेशर ग्रुप तो नहीं आपने बनाया हुआ अपने मकासद के अपने काम काज देने के लिए? अच्छा होगा आप इस पर पहले तज्जिया सुन लें, फिर मैं जवाब। तज्जिया तो आप अपनी को बात बताएंगे तो उसके बारे हमें बोलने ही नहीं दे रहे हैं। स्कूटी सारी का कहते हैं सुना रहे हैं। आप सवाल करें, आप बोले, मैं बात इंटरप्ट नहीं करना, मकसद ये है। असल पता क्या है कि तंजीम मुगलिया बुनियादी तौर पे उस वक्त वजूद में आ गई थी जब मुगलिया इक़्तिदार का ज़वाल शुरू हुआ। उस वक्त से लोगों ने मुतहद होने की कोशिश की, लेकिन वक्त बड़ा बेरहम होता है। उस वक्त लोग इतना पिस गए थे, इतना परेशान थे कि वो अपना आप छिपाना चाहते थे, सिर्फ जाने बचाना चाहते थे। लेकिन बाद में हालात चेंज हुए, कुछ लोगों ने कोशिशें करनी शुरू कर दी। उस वक्त से ये सिलसिला मुगलों को मुतहद करने का सिलसिला लोगों ने शुरू कर रखा है। लेकिन हमने बाकायदा तौर पे एक जरूरत महसूस की कि हम एक कारवान मुगल के नाम पे एक ऐसी तंजीम बनाएं जो आज पाकिस्तान पे रजिस्टर्ड हो, जिसका मकसद सिर्फ ये हो कि हम लोगों को उनको हकूक जताएं, उन्हें एक मुफीद शहरी बनाने की कोशिश करें। वो लोग जो पिसे हुए हैं, बहुत सारे हमारे लोग हैं जो वाकई आम लोग जो है वजीरों मशीरों से या इक़्तिदार में रहने वाले लोगों से अच्छी जिंदगियां गुजार रहे हैं, लेकिन बहुत सारे वो लोग हैं जिन्हें जीने का हक तक नहीं मिलता, परेशान है, वो मुआशी तौर पे परेशान है, मुआशरे में परेशान है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि उन लोगों को भी साथ लेके उठाएं और आगे लेके आएं, ताकि एक ऐसी तंजीम आए जो इन पिसे हुए तबकात, हमारा जो पिसा हुआ तबका है, वो भी आगे आ सके।
ठीक हो गया। अच्छा नाज़र साहब ये बताएं कि जिस तरह हम कहा जाता है अमेरिका के गुलाम, अंग्रेज़ों के गुलाम, अभी भी ये मुल्क गुलामी में है, उनकी कॉलोनी है, ये बातें कही जाती हैं। तो हमारे पास अगर पैसा आ जाए तो क्या हम वो ज़हनी गुलामी हमारी मतलब ज़्यादा भी हम अमीर हो जाए, ज़हनी गुलामी खत्म हो जाएगी? ऐसे ना हो कि एक गोरा आए, अंग्रेज आए, आके बड़क मारे, वो शेर हो और हम गिदड़ों की तरह बैठ जाए, पैसा भी हमारा किसी काम ना आए। ये हमेशा से रहा है कि जो इमरान भाई ने बात की है, इसमें मैं यही समझता हूँ ना कि वो ही कौमें तरक्की करती हैं जो मुत्तहिद हो जाती हैं। इत्तेहाद ही ताकत की अलामत है। अब उसमें जाता है कि ये छोटी छोटी तंजीमें हैं या आप बरादरियाँ कह लें, मैं तो बरादरीज़म का कायल ही नहीं, क्योंकि ये मैं इसको तासब समझता हूँ, ये नुकसानदेह है माशरे के लिए। ये एक तफरीक है कि बाकी लोग एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। फिर उस बरादरी में भी मुख्तलिफ तंजीमों का होना, मैं समझता हूँ ये भी बरादरी के लिए नुकसानदेह हो जाता है कि 10 बंदे इधर से इकट्ठे हो गए, एक तंजीम बन गई, 10 इधर से इकट्ठे हो गए, एक बन गई, 10 इधर। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि कम अज कम जो मुगल बरादरी है, इसके तमाम के तमाम ग्रुप्स जो हैं, जितनी तंजीमें हैं, उनमें इत्तेहाद हो। देखिए मैंने एक बात की थी जब इन्होंने काटी थी, 40,000 एक हल्के में वोट है PP 116 में, अब जो 65 बन गया है, कम से कम 50 से 55,000 वोट। अच्छा बात सुनिए, PP 65 में 40,000 वोट है जी, अब तो 55 के लगभग होगा ना, क्योंकि PP 16 में 5 हल्के थे, अब 4 हल्के हो गए। 55 के लगभग होगा। टोटल वोटर कितने हैं? वोटर इस वक्त तो तकरीबन 2.5 लाख है ना। 2.5 लाख में अगर आपकी 50 लाख सिर्फ मुगल 50,000 है तो 2 लाख देखे ना, फिर वो कितने % आपके बनता है ना? नहीं, ये हल्का और सर ये शहरी हल्का है ना। असल पता है क्या है, जो अब आप तहसील मलकवाल में या खालिया में जाएंगे ना, तो जो लोकल एरियाज है ना, उनमें तादाद बहुत कम है मुगलों की, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इसमें भी अगर आप एवरेज निकालें, ये वोटों की कास्ट है ना। मैं आपको जो बताया 2 लाख से तकरीबन 2.5 लाख हुआ, तो ये वोट है, ये आबादी नहीं है, वोट है। और ये मुगलों के वोटों की बात है। अब मुगलों के वोटों में सारे तो नहीं बने हुए वोट, को बूढ़े हैं, को बच्चे हैं, को नाबालग हैं। अच्छा चेयरमैन साहब ये फरमाइएगा कि जो मुगल हैं, इंडिया से माइग्रेटेड हैं, महाजिर हैं, वो भी आपकी तंजीम में शामिल है? मुगल में महाजिर लोगों की तो शर्त नहीं हो सकती। नहीं, वैसे जानकारी के लिए आप नाज़रीन मतलब मालूमात में इजाफे के लिए बात मुगल है, वो मुगल है, मुगल है, चाहे माइग्रेटेड हो, आपका हिस्सा है, शक नहीं है, चाहे वो कोई भी काम करता। ठीक हो गया। ये भी शर्त नहीं है कि वो जरूर वो लोहे के काम करता। मुगल कपड़े सिलाई भी कर रहे हैं, जो भी काम करता मुगल हो जी। बड़े बड़े अच्छे ओहदों पर भी हैं, बड़े बड़े नामी गिरामी पाकिस्तान की फैमिली है, मिलों के मालिक है, शुगर मिलों के मालिक है। तो क्या बड़ा होने से मुगल नहीं रहेगा या छोटा होने से मुगल नहीं रहेगा? अच्छा, मुगल है वो जैस हालत में भी है मुगल। चेयरमैन कारवाने मुगल मिर्जा मोहम्मद हनीफ साहब ये फरमाइएगा, 1.5 साल हो गए आपने ये जो कारवाने मुगल आल पाकिस्तान बनाई है, ठीक है, 1.5 साल हो गए। 1.5 साल में आपने क्या क्या किया है? रफाई सिलसिले में क्या क्या काम किए? टाइम थोड़ा जितने भी हैं, जब तक आपके काम नहीं खत्म हो गए प्रोग्राम नहीं लंबा कर लेंगे। रफाई कामों में आता है लोगों की याद। ठीक है जी। मैं आपको नामी ग्रामी गाँव जो है जिनको मंडी शहर के लोग सारे जानते हैं, वो दिलवाना चाहिए। एक कश्मीर डेयरी खालिया रोड पर, वो अलाल कश्मीर से और राजा आया हुआ है, उसने किराए पे ली, आगे कुछ लोगों को फरोख्त कर दी, वो हमने वापस करवाई। जगह थी कोई खालिया रोड पर है, उन्होंने कब्जा कर जी। लिया। कब्जा नहीं किया, जाली रजिस्ट्री बना के उसने आगे फरोख्त कर दी कि गुंडा ग्रुप को यहाँ बिठा दूंगे, ये खाली करवा के। ये तो बहुत जबरदस्त काम किया आपने जी। ठीक हो गया। और चीमा चौक में पिछले दिनों वो लड़कों को रोककर फायरिंग की थी, जी वो अपनी कोर्ट से तारीख हुए वापस आ रहे हैं। जी जी, तो फैन लगे थे, फैर जिन लोगों ने मारे थे, जिन लोगों ने फैर मारे थे, उनके पास लगे थे, उन्होंने बंदा भेजा था, बैठ के बात करते हैं। तो जवाब ये आया था कि हमारे पास शाम को आ जाए बात करें। तो हमने उनकी शिकायत की। अभी 3 बंदे जेल में और 2 मफरूर हैं। अब वो पैसे देते हैं, राजीनामे की शर्तें पूछते हैं कौन सी हैं, हमारी जान चुकी। क्या ये भी कोई तरीका है कि चौक में खड़े करके लोगों को फैर मारो और बोलो शाम को हमारे पास आ जाए बात करेंगे? हमने ये किया। जिंदाबाद। 2 काम हो गए। और दोस्त है उसकी 3,
एकड़ जमीन वेली 3 एकड़ की उसने फादर के लिए बनाई हुई है, गेट लगा हुआ है। वो एक चौधरी साहब ने दीवार तोड़ के उधर अपने डंगर छोड़े हुए, जो बंदा जाता था वो बोलता था ये जमीन थोड़े वाली है, तो वो लड़ा खत्म हो गया मेरे वहाँ जाते ही। अब वो लड़े वाली नहीं रही है, यानी कि मामला आपने हल जी। करवा दिया, 3 हो गए। और अच्छा, आज शाम को जो शाम गुजरी है वो 11 बजे जनाजा था यूसुफ गुल का। हाँ जी, जनाजा पढ़ के हम मलक किशोर के पास चाय पीने के लिए बैठे हुए थे। वहाँ वो एक आदमी ने अपनी 2 बेटों और बहुओं को निकाल दिया, वो सामान गाड़ी पे लोड कर चुके थे। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बोला जी घर से बाबा जान ने निकाल दी। तो हमारे नायब सदर मिर्जा आलम साहब हैं, उनको मैंने उसी वजह बोला कि इस प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे और इन बच्चों को इन लड़कियों को उसके बच्चों के बहुत अच्छा काम है, जिंदाबाद। 4 हो गए, 4 हो गए। और उसके बाद जब कोरोना आया तो हमने अपने सारे, यही तो हमारा बड़ा काम है कि वसाइल वाले लोगों के मसाइल वाले लोगों के मसाइल हल करने में इस्तेमाल करें। जबरदस्त। उसमें हमने जो हमारे वसाइल वाले लोग थे जी, उनसे हेल्प लेके मसाइल वाले लोगों की हेल्प की है, और हमारे पास उसका पूरा रिकॉर्ड है। जिन जिन लोगों ने हमसे हेल्प लेना पसंद किया उनके शनाख्ती कार्ड हमारे पास है और एप्लीकेशन है, और सिर्फ हमारे सेव में जबरदस्त, जिंदाबाद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद कितने रसूलुल्लाह लोगों की मुझे आपने भी- कितने लोगों की आपने मदद कितने की? और कौन, ये मुझे भी नहीं पता, ये इनको भी नहीं पता। कितनी हेल्प की गई? हमने पैकेज बना के भी दिए, कैश भी दिया। पूछे जी पैसे चाहिए, कितने में गुजारा हो जाएगा, दिन अपने दबाओ। अच्छा देखें, मैंने को खबर नहीं देखी आपकी इस जो एक्टिविटी की, क्या कहेंगे? सर हमने खबर नशर नहीं की। हमारा मकसद ये था कि हमने जो कलेक्शन की, जो बैगेज बनाए, या जो हमने वो नकद रकम दी लोगों को, वो इस तरह की कि हम रात को 12 बजे एक हवेली में बैठे। कहानी सुना रहे हैं। ईमानदारी की बात है, मैं इस बात की हकीकत आपको बता सकता हूँ कि रात को बैठे, रात को लोगों को मैं ऑन एयर आपको नहीं बताता, इसके बाद मैं अलहदा आपको कहे तो मैं आपको उन लोगों के नाम बता सकता हूँ कि इसका इकरार करेंगे कि रात को 11 बजे 12 बजे जाके उनका दरवाजे खटका के उन्हें कहा कि भाई ये बैग अंदर रख ले। जिंदाबाद, क्या बात है जनाब। और हकीकत है, आप इसके बहुत सारे प्रूफ हैं जो मैं दे सकता हूँ। अच्छा, और इसके अलावा आपने 18 बच्चियों के जेस में हमने हिस्सा जिंदाबाद। वो इज्तिमाई सिलसिले में हम इकट्ठा करके देखिए, मैं मिर्जा साहब दिमागी तौर पर ना, जो ये फेक लोग होते हैं, फेक काम करते हैं, मलिक इससे बड़ा सख्त खिलाफ सर जो पता जेन्युइन काम करे। मैं इसी स्टूडियो में ये फरमाया गया है कि ये सारे ग्रुप हैं 700 मेंबर्स, ये फॉर्म लोगों के एड्रेस पता टेलीफोन नंबर के साथ ठीक है, 30+ एग्जेक्टिव मेंबर्स, और हमारे पूरे शहर के जो बारसूख लोग हैं उनकी हमारी एक हिसाब से कबीना जो है। आपको क्या बता ये ग्रुप बना सकता है? दूसरा, मैं दावे के साथ कहता हूँ इस मुद्दे पर इन्होंने भी तंजीम बनाई थी। ऑल पाकिस्तान रजिस्टर्ड पाकिस्तान की कितनी फलाई तंजीमें हैं जो मेरे जैसे और हमारे बाबर भाई जैसे और हमारे मंडी बाग जो कुछ हम सारी मैंने अब तक जितनी भी तंजीमें देखी है ना, काम जो है वो 4 आने करती हैं और चर्चा जो है 100 रुपया करती हम है। अपने हमारा लोगों के लिए चर्चा करते हैं। और जब किसी बंदे को काम पड़ जाता है ना, जेन्युइन को हकदार होता है, तो फिर वो तंजीमें मिलती ही नहीं है जो मलिक बड़े बड़े साहब, दावे इस करती हैं। वक्त भी हमारा एक ग्रुप आले में जाके बैठा हुआ है, वहाँ हमारे एक दोस्त की बेटी की शादी हुई है, मामला थोड़े बिगड़ गए हैं। हमारे लोग इस वक्त वहाँ बैठ में बात करवा सकते हैं कि मामला ठीक हो जाए। अल्लाह की मर्जी के लिए, रफा के लिए कर रहे हैं, वोटों के लिए कर रहे हैं, कौन से इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं। ये सारा मलिक साहब, इक़्तिदार इस तरह नहीं मिलता। जिन जिन लोग हमने पैसे दिया है उन्होंने हमारी तरफ मुड़ के ही नहीं देखा है, और या किसी को बताएंगे तो उनकी हद हमारा नाम ले। रजा अल्लाह की जब हो तो सारे वसाइल और हालात और आपकी इज्जत का मुहाफ़िज़ अल्लाह ताला होता है। मिर्जा नीर साहब, आपकी जो कारवाने मुगल आल पाकिस्तान रजिस्टर्ड है उसका मैं चर्चा कर रहा हूँ।
1.5 साल में आपने क्या किया, अगर कुछ रह गया हो फिर ना कहिएगा, बता दीजिए आप। हमारा जो बुनियादी मकसद है वो समाजी और समाजी लिहाज से लोगों का है कि जो लोगों के हालात किसी वजह से परेशानी हो उनके हल करने के लिए हमने पूरी कोशिश की। मसलन ये होता है कि आजकल एक मुआशरे में एक बड़ा मसला चल रहा है बेटियों का सिलसिले में, जिससे कई घर कई खानदान तबाह हो जाते हैं। उस हवाले से हम हमारी पहली जो तरजीह है ना वो ये है कि हम इस हवाले से कोशिश करें कि इस हवाले से खानदान आपस में जुड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी कामयाब है। अच्छा, कुछ चंदा वगैरह भी इकट्ठा करते हैं आप, जो आपके मेंबर सर हैं? मैं अर्ज कर चुका हूँ कि हमारे जो वसाइल वाले लोग हैं उनके वसाइल हम अपने मसाइल वाले लोगों पर। ये आपकी बात मुझे फिक्रा बड़ा पसंद आया। आप कितना चंदा ले रहे हैं? ये साथ सर नहीं, जो एग्जेक्टिव मेंबर होते हैं वो मंथली फंड भी देते हैं और इमरजेंसी फंड भी देते हैं। ठीक। और पहली मेरी बात नामुकम्मल रह गई जी, जी, थी, करें। मानवजाग में हमने स्कूल बनाया बच्चियों का, और उस बच्ची जो इंचार्ज बनाई है उसका हमने बोला है कि इसका जो भी आमदनी होगी आपकी होगी, दस्तकारी और जो बच्चियां आप सिलाई करेंगे हम उनका सन्नी बोर्ड में इम्तिहान दिलवा कर उनके के साथ डाला होंगे। वहाँ एक तरफ बच्चियों का स्कूल है प्राइमरी, दूसरी तरफ बच्चों का स्कूल है, और तीसरी साइड पे दीनदारों की बस्ती है। हमने वहाँ पाने का प्लान, और उस प्लान में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टोटल फंड मिर्जा ने इसने अपने जेब से। जिंदाबाद, क्या बात, क्या कहते अगर हैं? इस तरह ये गिनती चलती रहेगी ना मलिक साहब, मैंने अर्ज किया हम शो मिनट में जो कुछ बता दिया है आपके वो कहने पे मेरा दिल करता है कि इस मौजूद को हम बंद करें। आप जो बात पूछें। नहीं, पता क्या, मेरे पास यहाँ पर तंजीमें आती रहती हैं, पहले भी तंजीमें आई, वो आके मुगलों की बनाई हुई हैं, वो बता के हमें जहेज दिया, ये दिया, वो दिया। मैं भी नेक्स्ट टाइम आप सबको बोल दिया करें पहले 2 दिन के प्रूफ साथ लेकर आए। नहीं, प्रूफ ना लाए, सिर्फ आवाम को जो है बार है आप जुबानी बताएं कि हम सर ये काम कर रहे लेते हैं। हैं, और जिस एरिया से बंदा होता है वहाँ जो हमारा एग्जेक्टिव मेंबर होता है हम उसकी अप्रूवल लेते हैं कि इस बंदे की एप्लीकेशन आप इसके बारे में क्या कमेंट्स हैं वो लिखें, और अगर वो बंदा हकदार होता है तो एप्लीकेशन हमारी सेव में चली जाती है और उस पर एक्शन शुरू। अच्छा, आपकी रहायश कौन से महल्ले में है? मैं पुराना रसूल रोड तारकाबाद मेन गली में स्टार्ट। अच्छा, ठीक है। आपकी शफकतबाद में है? जी शफकत ना साहब की शफकतबाद में है, ठीक हो गया। शफकतबाद के लिए कोई पैकेज या मनीबौद्दीन शहरियों के लिए कोई पैकेज दिया हो आपने? नहीं, ऐसा इज्तिमाई पैकेज तो कोई नहीं हमने दिया, लेकिन ये है कि कोशिश जरूर है कि हम इंशाल्लाह जो अगर कोई अच्छा प्लान कर सके वो करेंगे जरूर इंशाल्लाह। ख्याली प्लान या ख्याली मैं आपको बता दूं कि ये भी कर दिया वो भी कर दिया, ऐसा इज्तिमाई पैकेज अभी सोच में है, लेकिन जब कंप्लीट हुए इंशाल्लाह। मालिक साहब पैकेज देती है गवर्नमेंट। ठीक है। हमने जब पहली दफा एमएलए साहब से मुलाकात की तो उन्होंने हमसे पूछा जी आप फरमाएं क्या करें, तो हमने गुजारिश की जनाब ये नगीना सैनमा से लेके वो इस्लामिया स्कूल तक सड़क जो है बहुत ज़्यादा खराब है, अब उसके गड्ढे से ही करवा दें। तो वो नहीं गवर्नमेंट ने करवाया, और आपको पता है इस वक्त पीटीआई के जो एमएलए एमपीएस हैं पूरी पावर उनके पास है और किसी महकमे के पास। अच्छा, बात सुने आप। हमें बोल रहे हैं जी जो पहले फंड थे वो इस्तेमाल हो गए हैं, अगले महीने की 15 तारीख को नए फंड मिल रहे हैं, आप 18 को आ जाएंगे। वो जी 18 को आप जाएंगे तो वो बोलेंगे जी आज नहीं, थोड़ा बिजी हो। ऐसे लोगों को इलेक्शन में याद रखें ना, तो ऐसे लोगों को इलेक्शन में याद रखें। इस दफा हम आजमाएंगे। हाजी साहब ने बड़ा वादा किया हमारे साथ, उन्होंने कहा कि जुलाई में बकायदा काम शुरू होंगे नए, जुलाई अगस्त में। उस सिलसिले में आप हमें लिख के दें, हमने बकायदा तौर पे अपने मसाइल जो है हल्के के या अपने मनीबौद्दीन शहर के, उस हवाले से उन्होंने बकायदा लिख के दिया जो जो करने वाले हैं, बिजली के काम जो करने वाले हैं, गलियों में गुच्छे तारों के जो निकले हुए हैं, गैस जहाँ पे मसला है गैस का, बिजली का, सीवरेज का, वो बकायदा तौर पे लिख के गली गली का हमने लिख के दिया है, कम से कम उस पे अपना अमल दरामद कराएं। अच्छा, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह
वो करेंगे, बड़ा पक्का वादा किया है मैंने दो साहब ने। क्वेश्चन आपके लिए रखे हुए हैं, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है, आप उस पे जो है अच्छा पूछेंगे। इकट्ठे ही दोनों क्वेश्चन कर दूं कि एक एक करके? जैसे आपकी मर्जी। ये जो कारवाने मुगल है, जैसे 3 लाख राउंड अबाउट ये आबादी बनती है इनकी। अब उसमें होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि ये तंजीमें जो बनती हैं ना, मेरा नुक्ता नजर जाती है, इख्तलाफ किसी की भी हो सकता है, अवाम और खुदा की रजा नहीं होगा उस वक्त तक हम ना तो ईमान के इक़्तिदार के ईवानों में जा सकेंगे, ना ही अपनी कौम के लिए कुछ कर सकेंगे। देखिए कारसाज अल्लाह ताला की जात पाक है, उसने ये कहा है कि इत्तफाक और इत्तेहाद में बरकत है, आप मुत्तहिद हो जाओ। अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हमारी तमाम तंजीमों में, ये मेरे भाई हैं, मैं बल्कि सबसे ज्यादा इनका कदरदान हूँ, इनकी कदर के लिए मैं आप नाज़रीन अर्ज करता हूँ कि मैंने कहा कि मुझे भी आप मेंबर रखें। चलो इसकी वजूहात जो भी होंगी, कि उन्होंने मुझे कहा जी आप जंजुआ लिखते हैं, आप मुगल लिखते हैं। नहीं, ये बात नहीं है। ये प्रोग्राम के बाद ये आपकी जाती डिस्कशन है, इसको प्रोग्राम के बाद में करेंगे। ये मामला छोड़े, बात किया, जवाब जरूरी है। नहीं, मुद्दे पे बाद में इनको बताओ। आप सिर्फ मलिक साहब नहीं, हाँ ने अपना सवाल किया है, बात किया, हाँ यार जवाब दूंगा। जो लीडर नाकाम हो गए हैं, जिनको आप पब्लिक पसंद नहीं करती है, हम उनको अपना प्लेटफॉर्म किस तरह दें? जी बड़ी अच्छी बात होगी। अच्छा जी, इन्होंने ये मतलब फतवा दिया अपने तौर पे कि जी जो लीडर नाकाम है उनको हम मेंबरशिप नहीं देंगे। मैं तो बात कर रहा हूँ बरादरी बेस पे कि जंजुआ लिखा था, मुगलों की ये कितनी अहमियत करते हैं। ठीक हो गया, मैंने जवाब दे दिया। ठीक हो गया। अच्छा अब आप ये बताएं कि सारे मुद्दीद क्यों नहीं हो जाते हैं? सारी तंजीमें जो आपकी बनी है मुद्दीद क्यों नहीं, इकट्ठी क्यों नहीं हो जाती हैं? जितनी भी तंजीमें आपने मुगलों ने बनाई है, मुगलों ने पूरे पाकिस्तान में, आपने पहले पूछा था कितनी तंजीमें, 700 प्लस जी, उसमें से रजिस्टर जो है वो लेस देन 40 है, और आल पाकिस्तान उसमें 2 है। एक का प्रोसेस चल रहा है और दूसरे का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नहीं हो जाना चाहिए, एक ताकत नहीं बन जाना चाहिए। आल पाकिस्तान है, देखिए अलग अलग रहेंगे तो वहां तक मुकासद तक पहुंच नहीं पाएंगे। आप इर्तिका के लफ्ज को समझते हैं, जी हम अभी इर्तिका के मराज से गुजर रहे हैं। ठीक सर मुगलों को इत्तिका में जाने की जरूरत नहीं, ये तो हुक्मरान है, ये तो आप नहीं। देखिए आपने तो उसको डेवलप करना है ना मुगलों को। सिर्फ देखिए मुगलों को इस वक्त हमारे कहाँ इर्तिका तो नहीं कि आप नए सिरे से बरादरी को ला रहे हैं, ये इर्तिका नहीं है। देखिए मुगल जो हैं ये एक हकीकत है दुनिया की, लिहाजा इसको हमने रिस्टार्ट कह सकते हैं, आप इर्तिका को रिस्टार्ट नहीं कहते, डेवलपमेंट कह सकते हैं, मुतहद करना ही कह सकते हैं, उनको मुतहद करना ही मकसद है ना। नहीं ऐसे नहीं है, ये एक रीस्टार्ट है, और रीस्टार्ट में कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं कि जिनको मुफाद ज्यादा अजीज होते हैं, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनको इक़्तिदार। इसमें अब ये बात मेरे ख्याल में नाज़रीन आ रही है कि ये मुगलों को तैयार कर रहे हैं, नए मुगल बना रहे हैं। ये नए मुगल बना रहे हैं, नए मुगल की बात कोई नहीं, नए मुगलों को ये बना रहे हैं। नहीं सर, हमारा मकसद नए मुगल बनाना नहीं, बल्कि जो मुगल है तो ये उनकी डेवलपमेंट करना, क्रिटिसाइज करना। जितने भी प्लेटफॉर्म हमारे हैं उनमें से आपको हमने मदद के साथ फारिग कर दिया। तो अगर आज आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप तज्जिया निकालें, तो आप सिर्फ तज्जिया करें। अदायत और तज्जिया में फर्क है, आप अदायत की तरफ नहीं आए, आप तज्जिया अच्छा यहाँ पर एक बात ऐड करूं कि मैं देखें, मैंने एमएससी की है मैथ कम्युनिकेशन में, 20 साल हो गए हैं सहाफत करते हुए, लेकिन मैं मशवरा इनसे करता हूँ। पता क्या वजह है कि इन्होंने 2-3 बार नाज़र रहे हैं, जो तजर्बा इनका किरदार इनके साथ होगा जो भी होगा, लेकिन जो तजर्बा इनका है वो मेरा नहीं है। ठीक है, ये बुजुर्ग जरूर है, ये बात आप जो इसको मानेंगे। सर उसी तजर्बे से तो हम माजरत करते हैं ना, वही तजर्बा तो हमको चाहिए नहीं। तो उसकी वजह ये है कि लोग इनको लीडर माने। तो नाज़रीन आज नहीं सर नहीं मेरे बड़े भाई हैं, यकीन कीजिए नाज़रीन, मैं इनको लीडर मानने के लिए तैयार हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, मैं हेल्प करता हूँ, उनके पीछे मैं तो तैयार हूँ सर, उनकी बात कर देखिए आपने जो है लोगों की फलाई करनी है। अरे तो सुने ना,
میں ناظرین یہ بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے بات کی تھی نا ممبرشپ لینے کی، تو وہ پیچھے لگنے والی بات ہے نا. جب ایک ممبرشپ تنظیم کی لیتا ہے اس کا مطلب ہے وہ خود کو ڈاؤن کرتا ہے نا. تو میں مغل برادری کے سامنے یہ اقرار کر رہا تھا کہ میں اس تنظیم کا ممبر اگر ہوگا تو ڈاؤن ہوگا نا. اچھا پروگرام کو یہ بات میں بحث کیجیے گا. عمران صاحب آپ سے کویسچن ہے، مرزا عمران بابر صاحب صدر ہیں کاروان مغل کے، آپ سے یہ کویسچن ہے کہ جو بھی تنظیم ہوتی ہے، کوئی گروپ ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، وہ بڑی تنظیم ہی لے لیں، اس میں ایک ہیرو ہوتا ہے. آپ کی تنظیم میں مرزا محمد حنیف صاحب ہیرو ہیں، کوئی اور بھی ہیرو موجود ہے؟ یہ کام ہے نا اس لیے نہیں یہ آپ نے حکم بناتے ہیں نا. یہ محترم ہے، بزرگ ہیں ہمارے، انہوں نے ایک ابتدا شروع کی ہے. میں نے ٹھیک پہچانا نا کہ ہیرو یہی ہے. صاحب آپ ہیرو، آپ انہیں ہیرو سمجھیں کیونکہ میں بھی ہیرو سمجھتا ہوں. مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے ابتدا شروع کی ہے، انہوں نے تنظیم بنائی ہے، تنظیم بنا کے پورا ایک پلیٹ فارم بن گیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو اپنا مرکزی صدر بنانا چاہتے ہیں. تو مجھے بنایا ایک پلیٹ فارم انہوں نے دیا. تو میں کیوں ایک بندے جس نے ابتدا کی، جس نے بنیاد رکھی، اس کو میں کہوں کہ آپ اس کو کٹ کر کے تو میں خود ہیرو بننے کی کوشش کروں. لیکن یہ ضرور ہے کہ کردار کے حوالے سے یا یہ ہے کہ ہمارا اس سلسلے میں یہ ہر جگہ پہ مشاورت کرتے ہیں، ہر جگہ پہ کوشش کرتے ہیں کہ مجھے ساتھ رکھتے ہیں. لیکن ون مین شو جو ہے وہ فلاپ ہو جاتا ہے، بوڑھے ہو جائیں گے، کوئی بیماری آ جائے گی. ان جیسے جب تک آپ 10-15 ہیرو نکال کے باہر تنظیم میں شو نہیں کریں گے. سر ایک منٹ سر، یہ کسی صورت بھی یہ ممکن نہیں کہ کسی کو ہم نے یاد بنا دیا ہے یا یہ سلسلہ بنا دیا ہے کہ ایک بندہ ہیرو بن گیا بس جو ہے وہی ہے. ہماری پلیٹ فارم میں ہر بندے کو پوری آزادی ہے، وہ اپنی جگہ پہ اپنا مقصد بیان کر سکتا ہے، وہ اپنی تجویز دے سکتا ہے تنظیم کے حوالے سے، اور ہر بندہ فعال ہے، ہر بندہ اپنی کوشش کر رہا ہے. اس میں کسی صورت بھی یہ سوالوں کے ملک صاحب جی ہیرو والی بات جو ہے آپ کو نام بتاتا ہوں، آپ ان کے قد کاٹ ہوں میرا بے شک تعلق کریں. آپ کی تنظیم کے لوگ مرزا ریاض صاحب پوجن کا سینٹری ٹائم کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا. پورا شہر ان کا احترام. لالا عالم صاحب لائن کلب کے صدر ہیں اور بہت زیادہ محترم. یہ پرانے ہماری برادری کے جو میں ان کو اپنی برادری کے چودھری سمجھوں گا. یہ ڈیرے والے گلدن والے مرزا آزاد مغل صاحب مغل کے بیٹے. اچھا اس کے ساتھ یہ واسو کونسل کے چیئرمین مرزا بشیر صاحب ہیں، ان کے بھائی مرزا عالم صاحب. ٹھیک ہو گیا، یہ بات کلیئر ہوگی، مجھے پتہ لگ گیا. اچھا یہ بتائیں سر دوسری آپ نے یہ بولا ہے کہ یہ بوڑھے ہو جائیں گے، یہ بیمار ہو جائیں گے، تو اس کے لیے سر ہم نے اس لیے بنانے کی ہے یہ بچے آگے آئیں گے، یہ ہماری جگہ یہ لیں گے. اچھا اب یہاں پہ ایک کویسچن ہے کہ متحد بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ منافقت تو نہیں ہے کہ منہ پر جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اوکے ہے، اور جو ہے جب منہ پہ نہیں ہے پیچھے بیٹھ کے یار مرزا سے مرے سانو کی نہیں ملک صاحب. اپنے جو بھی بندے ہیں چند لوگ بھی ہونا مرزا صاحب متحد ہوں، قائم ہوں، وہ کہیں کہ گولیاں آ رہی ہیں سینے پہ کھائیں گے پیچھے بیٹھیں گے. ایسے نہ ہو کہ مرزا محمد حنیف جا کے وہاں پر ایک افسر کے گال پڑا ہو، پیچھے دیکھے سارے گھر پہنچے ہوئے ہو. لیکن ایک میں عرض کرتا ہوں صاحب، مرزا صاحب ایک عرض کرتا ہوں، ایک بات تاریخ میں یہ ثابت ہے کہ جو اپنے اسلاف کی پیروی نہیں کرتے وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے. تنظیم مغلیہ جو تنظیم مغلیہ ہے نا ضلع منڈی بہودین میں، یہ ہمارے آباء و اجداد مرزا نور محمد صاحب اور مرزا غلام رسول صاحب نے اس تنظیم کو قائم کیا تھا اور رجسٹرڈ کروائی تھی. الحمدللہ یہ آپ کا پروگرام ہے، آپ تو کریں گے. اچھا تو ایک تنظیم انہوں نے بنائی جس میں عام افراد کو، مغلوں کو شامل کر کے ان کی فلاح کے لیے کام کرتے رہے، اور منڈی بہودین میں انہوں نے بہت زیادہ اپنی پاور شو کی، کونسلر بنائے، ایک ہولڈ کیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں، حالانکہ میں نے کئی بار اعتراف کیا ہے کہ میں صرف اور صرف ایک برادری کی تنظیم کے حق میں نہیں ہوں، مخالفت بھی نہیں ہے میری. میں تو دیکھیے ہماری تنظیم ہیومن رائٹ سوسائٹی جو تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام کے تمام وہ جو طبقات ہیں ان کو متحد کیا جائے، سب کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے کردار ادا کیا جائے. کیونکہ اگر ایک وہ کہاں گئی ہے، وہ ٹریول کر کے کہیں دوسرے ملک کوئی ٹور تو نہیں گئی ہوئی.
सुना ना, वो काम कर रही है, आपको अब फाइल लेके आए ना इस मलिक सर आप बनाए ना, आपको अच्छा सर क्या काम कर अगला रहे प्रोग्राम हैं? रखे ना, रखे सर, रखे ना, ये तो 700 है, बंदे लेके एक सुने, 4200 मेंबरान अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कोरोना में जो किरदार आया था, आप उसके गवाह हैं। कोरोना में नाजरीन, पूरा जिला मंडी बहुदीन जानता है जो कोरोना में किरदार हुकूक इंसानी सोसाइटी ने अदा किया, वही बात को हमने ऊपर नहीं किया, लेकिन पूरा जिला मंडी बहुदीन जानता था उन्होंने काम किया। अब आपने बात को मोड़ दिया। पोस्टमार्टम करना है, सर, मुझे बातें नहीं चाहिए, सर, मुझे काम मैं- चाहिए। सर मैं काम की बात कर अच्छा, रहा हूं। एक बार उनको ये तो बता दें, काम वो दोनों कुछ का है ना, कहना चाह उसको रहे हैं। आपने मौजूद को छेड़ दिया ना, अब मेरी बात अच्छा, से मैं जवाब देता हूँ, तस्वीर खत्म हो गया है जी। या इंसानियत की बात जी। करेंगे, वो आप खुफिया काम कर रही है। जी, तो बात हुई थी अपने असलाफ की तरफ। जी, असलाफ में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया था। इस तरह ही। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद नवाब सलीमुल्लाह खान नवाब ऑफ ढाका ने रखी थी। तो कैद आज़म के साथ नवाब सलीमुल्लाह खान की फोटो नोट पर क्यों नहीं लगा रहे हैं? सवाल है ना। इस तरह ही। हालात और वक्त जो है उसकी नज़ाकतों को मद्देनजर रख कर कोई भी बात करनी चाहिए और कोई भी काम करना चाहिए। उन्होंने अपने दौर में राउंड खेला, उस राउंड का आपको फायदा हुआ, वो राउंड खत्म हो गया और आपने भी उन मसलाफ को छोड़ के, जो आप जिनको अपने वालिदैन सियासी मानते थे, उनको छोड़ के आपने नया स्टेप, नया तरीका अख्तियार कर लिया। आपके जो हवारी थे, जो आपके साथ चलते थे, वो भी गए। एक मशवरा दूं मेरा आपको, एक मशवरा दूं मेरे आपको। साथ तो कंपटीशन था ना, आप कर रहे वो तो आप प्रोग्राम रखा हुआ है कारवाने मुगलों की बात है, आप मेरे साथ के तय कर रहे हैं। सवाल आप उसको करें, आप इजाज से तो मुकाबला मत करें, जिसने इजाज किया है उससे मुकाबला आप करना है, सबसे एक वो सवाल, नहीं, आप सबसे एक सवाल सवाल, नहीं है। एक सवाल आने दें। सवाल था कि असलाफ ठीक हो गया, खत्म हो गया, असलाफ बात असलाफ उसको के खत्म करें, एहतराम करना आगे चाहिए। चलने दें। अच्छा ये बताएं, आपकी जो तंजीम है उसमें से एक बंदा आ गया, कोई जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई, जो भी हो गया, आगे से दूसरा बंदा बड़ा तकड़ा है, ठीक है, बहुत ही पावरफुल है, ऐसे ना कोई घर से ही ना निकले, गली में वो केले मार खाता रहे। आप हमारे कारवाने मुगल की बात कर रहे हैं। जी आपकी बात बात करता हूं। आपकी हो रही है। तो क्या करेंगे वहाँ पे? साहब, जी जी मैं अल्लाह की ज़मीन पर और अल्लाह के लिए भी अपने पाँव पर खड़ा रहता हूँ। जी, मेरा ख्याल है मैं अपने बारे में ऐलानिया कह सकता हूँ कि मुझे किसी का भी खौफ नहीं। आप दिलेर आदमी हैं, आपके बाकी जो मेंबरान हैं वो भी इसी तरह जब दिलेर हैं। मैं साथ होऊंगा तो मेरे जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी और हमारी कैबिनेट है वो पीछे ये तो भी इमरान देखना तजुर्बा जब का आप काम है, साथ ना इमरान रहे, खान जब को आप साथ कहा ना था। रहे तो पीछे बाकी मैं जिन लोगों के आपको नाम गिनवाए हैं आप फर्जमा टूर पे गए हुए हैं कराची, यहाँ पे कोई मसला बन गया फिर जी, तो वो मेरे साथ हैं, वो जरूर उसमें एक्शन एक्शन लेंगे। पूरा लेंगे। ठीक है, सही है। अच्छा एक मेरा क्वेश्चन है, जो पहले आए थे उनसे भी सबसे मैंने किया, सिर्फ मजलूम है, उसमें चाहे वो गोदर फैमिली से तल्लुक रखता है, अगर वो कमजोर है ना, माशी तौर पर कमजोर है, वो कमजोर है, कई बंदों के पास पैसा भी होता है, बंदे भी होते हैं, लेकिन हुक्मरान तबका जो है वो ताकतवर होता है, वो कमजोर होते हैं। अच्छा, और फैमिलियां भी जो हैं, चाहे उनके पास पैसा है, जो मैं एक दो जो है ना तबकात की बात करता हूँ, एक ताकतवर तबका है, हुक्मरान तबका है, एक जो है वो गरीब तबका है, कमजोर तबका है, मतलब है वो महकूम है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आप जो है, मैं समझता हूँ कि अगर एक मुगलों की बात करते रहे तो इस कारवान को लेके सब आगे मैं चढ़ना, मजलूम सिर्फ इस कारवान कोई दूसरी मतलब बरादरी से मजलूम आता है उसकी हेल्प करेंगे, हमें खुशी महसूस होगी और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि उतनी ही हेल्प होगी जितनी अपने लोगों की करते हैं। इंशाअल्लाह उससे भी ज्यादा होगी। ठीक है वो अल्लाह की नाज़रीन, इनायत है। नाज़रीन आपने जो है कोई भी किसी को मसला मसाइल हो मंडी बहुदीन में, तो ये जो कारवाने मुगल आल पाक देंगे अपने मुगलों को, क्योंकि आपकी तज़ीम मुगलों की है, प्रोग्राम आपकी मुगल बरादरी पे है, क्या पैगाम है अपने लोगों को? हम अपने वसाइल वाले लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ मिल के उन वसाइल को अपनी बरादरी कबीले के जो मसाइल वाले लोग हैं उन पर खर्च करने के हमारा साथ। ठीक हो गया। अच्छा इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं होगी फंड में, मतलब है लगाते हैं कोई हेरा फेरी तो नहीं होगी? सर हम जो कुछ भी कर रहे हैं बकायदा रिटर्न प्रूफ है, फाइल है, ठीक है, पूरा कुछ है। कोई भी यानी बंदा किसी को जाके- कोई डाउट बहाम नहीं रहेगा। कोई भी बंदा जाके सेक्रेटरी के पास चेक कर सकता ठीक है है। जी, उसमें कोई रुकावट नहीं। क्या पैगाम देंगे आखिर में?
हमारा पैगाम कि तंजीम कारवान मुगल भी तमाम मुगलों को मुतहद करके एक बेहतरीन जमात बन के और इनके मंशूर की मैं तइद करता हूँ कि इक़्तिदार के ऐवानों में अपने नुमाइंदे भेजेगी। अच्छा, तमाम लोगों से, तमाम मुगलों से मैं ये अपील लेवल पे या सिटी लेवल पे जो तंजीमें बड़ी अभी हैं, आपने पार्टी सिर्फ मतलब मंडी बहाउद्दीन के हाथ तक रखी है ना, अभी मंडी बहाउद्दीन जी से बाहर- जिला मंडी बहाउद्दीन तक हमारी पार्टी फिलहाल जो है ना है। ठीक। लेकिन इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि अगर कोई भी तंजीम इल्हाक करना चाहती है, हमारे साथ शामिल होना चाहती है, हमारे मंशूर को समझ के हमारे साथ अगर आए तो हम उनके लिए दरवाजे कभी बंद नहीं करेंगे। जी, आप जरूर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी है। वो एक सवाल जो है ना वो खटक रहा है। आप नंबर तरह दोबारा बोल देना ये है जी कि मंडी बहादुर से इसलिए किया है कि कार्यालय में भी तो वो कुर्सी पर रुमाल डाल के बोला था मुझे तजर्बा का चाहिए। जी अगर हम मंडी में भी फेल हो गए तो लाल कश्मीर में जाके हम वो क्या करेंगे लोगों की या ग्वादर कराची में क्या करेंगे। आप ना एक दफा नंबर दोबारा बोल दें नाजरीन कह रहे हैं कि आप नंबर दोबारा अपना बोलें दोबारा।